Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject Maths. So I am talking about the revision of geometry. तो मैंने पूरी ज्योमेट्री की रिवीजन आपको चैप्टर ज्योमेट्री की रिवीजन अभी फर्स्ट वीडियो में करवा दी। तो मैं यही आपको बता रही थी कि तो हम एंगल बनाएंगे और ना तो सर्कल बनाएंगे, और जो बाकी चीज़ें हैं कंसेप्ट ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, then angle, types of angle, triangle, types of triangle, property of triangle, quadrilateral, quadrilateral के types, then circle and circles के पास, वो अच्छे से याद करना और अच्छे से समझ भी लेना। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैंने टेम्परेचर के भी बारे में बताया आपको, तो टेम्परेचर का जो भी बचा था मैंने वो कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल आएंगे, वो भी रिवाइज कर लीजिए। दूसरी बात, ज्योमेट्री चैप्टर में जो रेडियस डायमीटर कैलकुलेशन है वो, देन कैलकुलेटिंग सरकमफरेंस, एंड इफ सरकमफरेंस इज गिवन देन हाउ कैन वी कैलकुलेट रेडियस और डायमीटर, ये भी आपको एग्जाम्पल रिवाइज करवाने हैं। गेट इट? नाउ विल स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज एरिया एंड वॉल्यूम. So in area and volume we will start about the perimeter first. So perimeter, what is perimeter? The perimeter of a plane figure is the distance around it. Okay, then we have to calculate take the addition of the side of a given polygon. Fine. Next thing about area. So with the help of squares you can calculate the area. Fine. How can we calculate the area of irregular shape? Now we will see the formulae. So formula for rectangle, here are only 2 formulas in this chapter. Okay, first is for area of rectangle, it is length into breadth, and next formula is area of square, that is side into side. Okay, next okay, so if length and breadth is given, then by multiplication you can calculate the area, and you have to take unit square. Okay, don't forget the unit and multiply properly. Get it? Okay, now we will see the next. By calculating the square we can calculate the area also, and by the formula, the 2 formulas are already studied by us. Okay, so you can calculate by applying formula to the given figure. Now see this figure. In this figure you have to split the diagram into rectangle or square, and you have to calculate the area. Okay, always write units properly. So these are the simple examples, so it may be asked for 1 or 2 marks, and some story sums are there that may be asked for it. Okay, now our last topic is about volume. So I don't think volume is here. Fine, volume इसमें नहीं आया, तो please open your book. Okay, first of all I will tell you some examples. I have given story sums on this finding area. Okay, so they are not so lengthy, but you can find out. अगर square की side दिए तो आप उसका area ढूंढ सकते हो. If I given the length and breadth of an rectangle, so you have to find out the area of rectangle, if it is a room or it is in garden or playground, whatever it may be. And the opposite, if the area is given, then you have to calculate the side, or you have to calculate length and breadth. Clear? Now our last topic is volume. So definition of volume you have to remember that. Then next thing, volume of cuboid. Volume of cuboid is equal to length into breadth into height. Then volume of cube. Okay, volume of cube is equal to side into side into side. Okay, next the unit of volume. The unit of volume is cubic centimeter, meter or kilometer, whatever it may be. Get it?
Then we have to calculate the volume of cube and cuboid. So such simple examples are there, and also story sums I have also given. Okay, so read carefully, calculate carefully, and recheck paper. Okay, स्टोरी सम आपको फिर से रीचेक करनी है, अच्छे से सॉल्व करना है. वहाँ तो स्टेटमेंट आपको लिखना नहीं है, लेकिन अगर आपके एक स्टेप भी गलत हुई तो मल्टीप्लिकेशन गलत हो सकता है, तो इसके लिए आपको अच्छे से करना है और रीचेक करना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, that is calculating the volume of irregular shape. So how can we calculate the volume of irregular shape? Here we use measuring cylinder. हम irregular shape जैसे stone, नट, बोल्स या फिर लॉक, इन सब चीज़ों का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसको मेजरिंग सिलेंडर में डिप करेंगे. तो मेजरिंग सिलेंडर की हमेशा वाटर लेवल कितनी लेते हैं हम? 100 ml. और जब लॉक या फिर स्टोन इसमें डिप करते हैं तो वाटर लेवल नेचुरली बढ़ जाती है. अब सपोज इट इज़ नाउ 150, तो 150 माइनस 100, तो कितना बढ़ा? 50, राइट. दिस 50 इज द increased volume, that means the volume of a stone. Okay, so it is not in ml, it is in cubic centimeter, because 1 ml is equal to 1 cubic centimeter. क्लियर? तो इस तरीके से आपको अगर न्यू रीडिंग दिया और आपको रेगुलर रीडिंग 100 पता है, तो अगर इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट. गेट इट? तो आपका इस चैप्टर का भी रिवीजन हो गया. फाइन. सो मेजरिंग मैट्रिक मेजरमेंट्स, टेम्परेचर, देन ज्योमेट्री एंड एरिया एंड वॉल्यूम. सो तीनों चैप्टर आपके कैलकुलेशन के हैं. तो आपको काफ़ी सारा टाइम है, 2 घंटे का टाइम है. हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करेंगे. ठीक है. कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन रीचेक करेंगे, उसके बाद आंसर पे टिक करेंगे. ओके. क्योंकि अगर हम आंसर पे टिक करते हैं और फॉरवर्ड हो जाते हैं तो टाइम लगता है, मैथ्स का पेपर लेंदी हो तो, है ना. तो आप अच्छे से जब आप फर्स्ट टाइम ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको रीचेक करो. ओके. और जब पेपर कंप्लीट हो जाए और अगर टाइम बचा तो बिल्कुल आप फिर से रीचेक पेपर कर सकते हो, क्योंकि द टाइम लिमिट इज़ 2 आवर्स, है ना. तो शांति से पेपर सॉल्व करना, ये नहीं कि फिर से रीचेक करूँगा इसलिए फटाफट करना है. नहीं, एक ही बार कर रहे हो ना तो अच्छे से करो, वही रीचेक करो यूनिट्स, या फिर पहले समझ लो कि क्या कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या चीज़ें दी है ना. अगर साइड्स इक्वल है तो इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अच्छे से वो समझो, याद करो. कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए ताकि हमें वो समझ सके कि इज इट आइसोसेलस और स्केलन और इक्विलैटरल ट्रायंगल. देन सेम अबाउट द एंगल्स. तो कौन से एंगल्स 90 से कम होते हैं, कौन से ज़्यादा होते हैं, लाइंस के कितने टाइप्स हैं. ओके. सो हर चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना. हमारी 2 बार रिवीजन हो चुकी है, राइट. सो अच्छे से एग्जाम्पल जो भी दिया है प्रॉब्लम, वो अच्छे से रीड करो, समझ लो, उसके बाद सॉल्व करो, और फिर रीचेक करने के बाद ही आप टिक करोगे. फाइन. पेपर अपने सारे तीनों चैप्टर इजी है, हमारी एक बार रिवीजन हो चुकी है ना. तो अच्छे से विथ फुल कॉन्फिडेंस आप पेपर सॉल्व करोगे. ओके. फाइन. ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम.